Good afternoon, everybody. Good afternoon, Sat Sri Akal Kulveer. Good afternoon, Rimjim. Sanjay, good afternoon. Yeah, I'm now recovering. I had a viral fever and not in a position to even speak. Viral fever होता ही है 5 दिन चलता है बेटा तो ठीक है अभी I'm now temperature is much lesser but I can't be away from my students for long. Sparsh, good afternoon. God bless you. Pallavi, good afternoon. Kimi, good afternoon. Good afternoon, Rahul. God bless you. Yes, I do take Rimjim. हो जाता है इन इस मौसम में बहुत लोगों को हो रहा है. Ridhima, good afternoon and God bless you. I couldn't even go. I mean, I can't dare to go offline also, so that my students don't get the infection because virus है. It's something I was just hoping and praying कि COVID ना हो वो नहीं है. It was just a viral fever. And of course cold flu and all that but time lagta hai beta. Good afternoon, Mayank. Zinia, good afternoon. Yes, I'm recovering very fast. Another 2-3 days I'll be perfectly fine. All of you should also take care, of अभी तो खैर चलो with God's grace थोड़ा फर्क पड़ गया है मौसम का. Earlier it was very bad. So गरम सर्द. Thank you, Rimjin. Thank you, beta. Thank you, Rahul. I'm fine. At least, I mean, मेरे में आज जैसे मैंने कहा एनर्जी होगी to speak, I'll be starting my online classes immediately. Good afternoon. Yes, I know, Ridhima. आप सबकी दुआएं हैं. Thank you. Palak, good afternoon. Last day of an academy. Oh, wonderful. You completed your entire syllabus. Your weapons are ready. Yes. शिल्पी जितनी बार रिवाइज करोगे ठीक हो जाएगा. थैंक यू शिल्पी. थैंक यू बेटा. Yes. Yes, please do send your. I'll address to them. I'll address them. Thank you, beta. I'm. God bless you. Have a wonderful career और बड़ी जल्दी अपना 3 साल पूरा करके जज बनो. Good afternoon, Tahir. Oh, from Jammu Kashmir. Okay, welcome, beta. Khushamdeed. Yeah, Palak, I'm recovering. Just a little bit of congestion, but fever almost nil, 99 के करीब है, जो बहुत कम है. Not more enough to keep me away from online classes at least. Okay, I hope my offline students have also joined because I couldn't go to the offline. एक दो दिन नहीं जाऊंगा ताकि infection ना हो जाए मेरे students को. Okay, fine. Wonderful. Because I'm always feel concerned for every student of mine because time waste हो रहा होता है. Yes, thank you, Shilpi, and have a wonderful journey ahead in your life, and always touch the pinnacles of success and glory. Good afternoon, Payal. Okay, so these thumbs up are all my offline students, correct? Oh, 30. All of them are offline. 35, 37, 30, 41. Oh, अच्छा. कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करूं या लाइव का. यस, ताहिर दोनों को करो. जितने आप रिकॉर्डेड कर सकते हो आपका काफी सेम है. और लाइव में ये होता है कि यू गेट लिटिल मोटिवेटेड एंड प्लस एक थोड़ा पता चल जाता है. थोड़ी सी लाइव भी लगाओ और जितने भी ये रिकॉर्डिंग्स है वो देखो. ओके. सो लॉट्स एंड लॉट्स 66 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑफलाइन. ओके. हाँ, सितंबर में होगा. आई एम ऑल्सो टोल्ड. ताहिर, इंशाल्लाह बिल्कुल जज बनेंगे. Of course, Shilpi, why not? Don't have doubts about anyone.
आज गेट रेडी, दो क्लास है, इसके बाद हिंदू हिंदू लॉ है. अमितेश्वर गुड आफ्टरनून बेटा. Ajay, good afternoon. All these thumbs up are the offline students, right? So which means 92 offline. Okay, okay. Oh, thank you, Shilpi. Thank you, beta. Palka, good afternoon. Remission can be deducted from life imprisonment commuted to 14 years. No. बेटा हमने पढ़ा था ना कोमल कि अगर आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 14 इयर्स तो आपको काटना ही है, उसके बाद देखेंगे रेमिशंस कितनी है. ओके फाइन, चलिए. ओके, आई एम जस्ट गिविंग टाइम सो दैट स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग बिकॉज ऑफ दिस हिच. वो आज जब मैंने आई केम एट, मैं 1 बजे ऑन कर दिया था बट वो खुल ही नहीं रहा था. देयर वाज सम न्यू एडेड थिंग जो पता नहीं ब्लॉक कर दिया सब कुछ. फिर देन ग्रीन इज अ वेरी स्वीट गाय इन अन अकेडमी, ही हेल्प मी आउट, बेचारा लगा रहा. और मेरी नॉलेज तो लैपटॉप्स वगैरह की इतनी अच्छी नहीं है. आई बिलोंग टू द ओल्ड स्कूल, जो हम लिखते थे. अब लैपटॉप तो आप लोगों का जमाना है. सो आई वाज नॉट वेरी गुड बट ही हेल्प मी आउट एट एवरी स्टेप. Good afternoon, Chintu. I'm good, beta. Thank you, Muskan. Good afternoon. Yes, Amiteshwar. I'm becoming better now. Thank you, beta. I hope you are happy, and I know that you were a little unhappy about certain issue, but I hope you're okay now. Yeah, Muskan, I'm better now. Promissory estoppel in India. है बेटा पायल, मैंने आपको दी तो थी बहुत सारी जजमेंट्स प्रॉमिसरी एस्टॉपल की. नो 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 नो. पायल प्लीज गो थ्रू दैट एस्टॉपल का लेक्चर अगेन. उसमें प्रॉमिसरी एस्टॉपल पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है और गवर्नमेंट की है सारी. और गवर्नमेंट का अलग मैंने पढ़ाया हुआ, अलग इनके एग्जाम में आया हुआ है. तो गवर्नमेंट का पूरा एक अलग चैप्टर पार्ट है मेरे लेक्चर का. आशना गुड आफ्टरनून. राधे राधे मधुर. आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ, काफी हद तक ठीक हूँ मधुर, और ठीक भी हो जाऊंगा बिल्कुल. अनुभव गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून अश्वी. हाउ स्वीट, थैंक यू. स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक, आई विल टॉक टू यू ऑन टेलीग्राम बेटा. मुझे बताना कौन से स्टेट की बात कर रहे हो. बाय द वे, दिस इज अ गुड पॉइंट टू टेल ऑल माय स्टूडेंट्स. रिमेंबर वन थिंग, जनरल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरव्यू ऑल्सो. उसके लिए ना एक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन होती है, इंडिया 2025. इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन. ये जरूर ले लेना और इसको पढ़ो. इसमें आपका बहुत सारा एस्से कवर हो जाएगा और बहुत लेटेस्ट टॉपिक्स और जो हमारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो सब आती हैं. और बहुत सारे जो शुरुआत है ना वो जनरल नॉलेज को कवर करता है. हाउ स्वीट मधुर, आपकी मेरे साथ दुआएं हैं, गुड विशेस हैं, काफी हैं बेटा. चलिए, कैन आई स्टार्ट नाउ? आई होप एवरीबडी, आई गेस एवरीबडी इज ज्वाइन. चलिए, वी ऑलरेडी, आज हमारा हो गया बट आई विल कवर अप. आई थिंक टुमारो आल्सो आई विल टेक ऑनलाइन. प्रोबेबली विल गिव इट टाइम टिल, बिकॉज फिर 2 छुट्टियां हैं तो मैं फिर संडे को भी आई थिंक आई टेक, एंड देन मंडे से आई विल स्टार्ट माय ऑफलाइन क्लासेस. ऑफलाइन स्टूडेंट्स, तब तक बारिशें भी थोड़ी कम हो जाएंगी. आई एम टोल्ड काफी बारिश होने वाली है, and I'll also be okay. And no question of then giving infection to my students. I was more worried कि मेरी infection ना चली जाए. Done. So offline students will start your offline and the same जो हमारा मीडियम है वो फ्रॉम मंडे. तब तक ऑन ये नहीं है क्लासेस बंद है, रोज क्लासेस चलेंगी सेम टाइम. ओके, चलिए. जीके जुडिशरी बेटा सेम आपका ताहिर. गो थ्रू माय सब्जेक्ट्स, काफी वही हैं, थोड़े से लॉ सब डिफरेंट हैं. लेट मी सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट. आई टॉक टू अन अकेडमी, लेट्स सी अबाउट इट. और बिल्कुल बस मन लगा के पढ़ो. ऑल ऑफ यू आर डूइंग इन द सेम. बस जो आपको मैंने पढ़ाए हुए सब्जेक्ट्स वो डिटेल में कर जाओ, जज बन जाओगे, क्योंकि इतना डिटेल वहां कोई नहीं पढ़ा है. ओके, चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सब्जेक्ट.
And first of all, thank you all for your good wishes. Though I was on bed for 3-4 दिन हो गए, high fever था, but at last I'm back in action and we start. चलिए, thank you beta, thank you all. Let's now concentrate on our studies. That is the more important thing. In my last lecture, we were on the topic of bail, and we have seen that bail is a recognition of our Article 21, my most fundamental right of not only life but liberty. However, having said this, I went through the jurisprudence of bail in my first lecture. We have seen that there is no word called shall arrest. Even in non-bailable offences, may arrest. So naturally the question arises that what exactly will be bail? We saw in my last lecture. Bail, we have seen that is a way out of being physically arrested. You do remain under the dictates of the state, but you are allowed to move around freely. In other words, your physical movement is not restricted. Bail का, of course, if there are conditions, they are restricted to a certain extent, but फिर भी आप चल सकते हो, जेल में नहीं जाते. ब्रॉडली स्पीकिंग हमने देखा कि बेल के लिए पहली बात तो हमने देखा बेल 3 टाइम पे चाहिए. आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ रिमेम्बरिंग दैट लेक्चर. और उसके बाद हमने देखा कि मोटा मोटा हम बेल को 2 टाइप के ऑफेंसेस में डील कर सकते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. पिछली बार हमने करा 478 बेलेबल ऑफेंसेस. बेलेबल ऑफेंसेस में माय राइट टू बेल इज अ राइट. आपको देनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते. However, that is subject to my fulfilling the conditions which I am laying down for your bail. पिछली बार हमने सारा डिटेल पढ़ा बेलेबल का, और एक चीज हमने ये भी देखी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था, and I hope I gave you Moti Ram versus State of Madhya Pradesh, 1978 Supreme Court, that conditions should not be inhibitive. कंडीशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मैं पूरी नहीं कर सकता. अब बेलेबल ऑफेंस है, आपने ऐसी कंडीशन लगा दी जो मैं पूरा ही नहीं कर सकता, तो व्हाट विल दैट tantamount टू? डिनायल ऑफ बेल. जगमोहन, लकीली एंकल मॉनिटर हम इंडिया में नहीं लगा रहे, फॉरेन कंट्रीज में होता है, फिल्मों में देखते हैं हम, और यूएस में भी है, यहां पे अभी तक नहीं हुआ. ओके. We also saw in my last lecture the entire law about bailable offenses. और एक चीज हमने देखी कि वहां पे कैंसिलेशन ऑफ बेल नहीं है. शुभांगी, इट वाज 1978 सुप्रीम कोर्ट. आई होप आपको सबको पुराना लेक्चर याद आ गया होगा मेरा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारा 378 बहुत डिटेल में पढ़ा था. हमेशा याद रखना है, जो क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में आता है कि बेलेबल ऑफेंस में अगर मैंने आपको बेल दे दी है तो कैन वी कैंसिल इट? याद रखना 478 में कैंसिलेशन ऑफ दिस बेल इज नॉट देयर. इसकी कैंसिलेशन के लिए हम जाएंगे, हम आगे जाके देखेंगे दैट जो हमारा पुराना सेक्शन 439 था अब 483 है, इसके अंदर हम जाके कैंसिलेशन करते हैं. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है, ध्यान रखना. 478 की बेलेबल की कैंसिलेशन 478 में नहीं है. सबको याद आया हो, ये चीजें याद रखनी. ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं, बहुत ध्यान रखना. चलिए, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन,
सेक्शन 479 BNSS corresponds to section 436A of CRPC. चलिए इसको जल्दी से देखते हैं. मैक्सिमम पीरियड, ये पहला पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है ऑलरेडी. ये सेक्शन बना क्यों था? ये सेक्शन पहले नहीं था. दिस सेक्शन was added by the 2005 Amendment Act. इसका बेसिस था एक फेमस केस, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 सुप्रीम कोर्ट. ये बेस था. इसमें क्या हुआ था, एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस सडनली जेल पहुंच गए और वहां जाके हम उन्होंने देखा कि अंडर ट्रायल अपने टाइम से ज्यादा बैठे हुए हैं, जितना मैक्सिमम सजा हो सकती थी उससे भी ज्यादा बैठे हुए हैं. सो दे वर वेरी एंग्री. जैसे जितनी सजा हो सकती है उससे ज्यादा तो अंडर ट्रायल है, तो नया लॉ बनाओ. लॉ कमीशन वाज साउंडेड एंड देन द लेजिस्लेचर came up with this very very important section. चलिए इसको बहुत ध्यान से देखते हैं. ये मेंस का पूरा क्वेश्चन है. व्हाट आर द सेफगार्ड्स ऑफ अंडर ट्रायल्स रिगार्डिंग बेल, यू नो, ये होता है. तो चलिए देखते हैं व्हाट इसमें बेटा बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. सो लेट अस रीड द न्यू लॉ सेक्शन 479 BNSS with the new changes. बहुत ध्यान देना. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये मेंस का क्वेश्चन है इस बार. 479. Where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under the Sanhita or of an offense under any other law, under any law, not being an offense for which the punishment of death or life has been specified as one of the punishments under that law, undergone detention for a period extending to half of the maximum punishment imprisoned. So इसमें कौन सा नहीं लागू होगा जिसमें डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इकट्ठे दी गई है, वो लागू नहीं होगा, उस पे नहीं है ये लागू. सो पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन यही है. अब जहां पे अब ये प्लीज याद रखना, इन्वेस्टिगेशन, प्री ट्रायल और ट्रायल, इन सब में टाइम मिला के अगर वो कस्टडी में आधे से ज्यादा पीरियड काट चुका है, then the word is shall be released by the court on bail. क्लियर हो गया? अगर यानी कि सिर्फ ट्रायल में नहीं, जब से उसको कस्टडी में भेजा गया है, पुलिस की प्री ट्रायल में रहा है और ट्रायल में रहा है, तो एक अंडर ट्रायल है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक अंडर ट्रायल की सजा 3 साल है, चोर है, 3 साल होती है. नाउ दिस चोर को ये ऑलरेडी सपोज 15 दिन पुलिस के पास रहा हुआ है. ट्रायल शुरू होने से पहले 1 साल था, ठीक है, और ट्रायल शुरू होने के बाद सपोज 6 महीने रह चुका है. टोटल हो गया 1 साल 6 महीने और 15 दिन. इमीडिएट रिलीज करना पड़ेगा कोर्ट को. इमीडिएट, वर्ड इज शैल. क्लियर हो गया सबको? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? बस एक में नहीं होगा जहां पे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट इकट्ठे हैं, यानी मर्डर केसेस में नहीं होगा. अब इसके आप देखिए 3 प्रोवाइसो हैं. लेट्स गो थ्रू द प्रोवाइसोस. सॉरी. प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन, ये जो है अभी, ये पहला प्रोवाइसो अभी आया है, ये BNSS का. प्रोवाइडेड दैट सच वेयर सच पर्सन इज अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर,
where that person is a first time offender who has never been convicted of any offense in the past. तो पहला पॉइंट है कि अगर ये पहली बार जुर्म करके आया है, पहली बार ऑफेंस करके आया है, यानी कि कभी भी पहले कन्विक्ट नहीं हुआ। अब इस चीज में एक चीज याद रखना, जब मैं कहता हूं पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, सपोज ही वॉज कन्विक्टेड एंड अपील में वो छूट गया और यहां सुप्रीम कोर्ट में 136 आर्टिकल में छूट गया स्पेशल लीव में, तो वो कन्विक्टेड नहीं माना जाएगा, वो एक्विटेड माना जाएगा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सो कमिंग बैक, सो जहां पे ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, he shall be released on bond, सिंपल अपने पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा उसको। इफ he has undergone detention for the period extending to 1/3, 1/3, ये प्रीलिम्स में पक्का आएगा क्वेश्चन, याद रखना मेरी बात, और मेंस में भी आज तक कुछ भी आएगा, ये सेक्शन मार्क कर लेना, आएगा एग्जाम में। नया हो गया, बहुत अच्छा बनाया। सो दोबारा देखते हैं, अगर तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पहले सजा याफ्ता थे, आधा पीरियड आपने काट लिया इन्वेस्टिगेशन, प्री ट्रायल या ट्रायल में, आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो आपको 1/3 सजा काटने में आपके अपने बॉन्ड पे, बेल पे नहीं, बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया एवरीबडी? नाउ क्लियर? किसी को कोई शक? अब आ गया सेकंड प्रोवाइसो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में, after hearing the PP and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period, or release him on bail bond instead of his bond। अगर पीपी ऑब्जेक्शन डालता है कि जी ये चोर है, इसके ऊपर 10 FIR और हुई है, ये भाग जाएगा, तो अब आधा, नॉट विस्टैंडिंग द फैक्ट कि आधा टाइम वो काट चुका है, कोर्ट उसको अभी भी जेल में रख सकती है। या फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, पर्सनल बॉन्ड की जगह बेल बॉन्ड ले सकती है। क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर? तीसरा प्रोवाइसो, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो सच पर्सन shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than maximum period of imprisonment provided। और अगर आप सपोज 3 साल की आपकी सजा, पूरा 3 साल आप अंडर ट्रायल रह चुके, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी मिला के, तो कुछ भी हो आपको छोड़ना ही है, हुसैनारा खातून। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिवाइज कर लें जल्दी से। अगर तो आपने पूरा टाइम काट लिया ए, तो आपको इमीडिएट छोड़ना। बी, आपने आधा टाइम काट चुकी हो तो आपको अपने बॉन्ड पे छोड़ देंगे। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो 1/3 टाइम काट चुके हो तो बॉन्ड पे छोड़ देंगे। प्रोवाइडेड अगर पीपी ऑब्जेक्शन करे और कोर्ट को ऑब्जेक्शन सही लगे तो वो आधे टाइम पे नहीं छोड़ेगा, 1/3 पे भी नहीं, 1/3 तो होगा ही नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम है, इसमें वो हाफ पे नहीं छोड़ेगा, या फिर उसको कहेगा पर्सनल बॉन्ड की जगह बेल बॉन्ड हाजिर करो। क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन इसी पॉइंट्स में लिख लेना, आएगा एग्जाम में। मैं कहता हूं एग्जाम में ना भी आए, हम सब लोग वकील हैं, कल को हमें अपने अपने मौकिल अपने क्लाइंट को हमने बचाना है, वो जेल में, तो क्या हम ये यूज नहीं करेंगे एज अ राइट? कोर्ट को अगर नहीं पता या किसी ने को इसके नोटिस में नहीं लाया तो हमारा काम है ना ये करना। नो 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 नो, इन वन सेक्शन, प्रभजीत
मैंने पहले भी बोला था, डेथ और लाइफ हमेशा इकट्ठा पढ़ना है, कंजॉइंटली पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना। कोई ऐसी सजा नहीं है जहां सिर्फ डेथ दी गई हो। चलिए, क्लियर एवरीबडी? नाउ आई एम कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन. In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. अब बाई चांस कोई बेल के टाइम पे भाग गया था, पकड़ में नहीं आ रहा था, पीओ था, टाइम हो गया, वो कहेगा जी मैं तो भागा हुआ था, या वो माइनस करो। कुछ भी अगर टाइम की गलती, टाइम का एक्सटेंशन एक्यूज की गलती से है, वो इसमें रेकन नहीं होगा। सो प्लीज रिमेंबर, बेल का टाइम रेकन नहीं होगा, और अगर एक्यूज की गलती से कुछ एक्सटेंशन हुआ है, वो भी रेकनिंग में नहीं आएगा। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब मैं आ रहा हूं एक बहुत ही, इन माय व्यू, कंट्रोवर्शियल सबसेक्शन। हम देख चुके हैं, काफी धज्जियां उड़ा चुके हैं हम इस लॉ में, एंड आई होप माय स्टूडेंट्स आगे जाके कोर्ट में भी उड़ाएंगे। पर ये एक सबसेक्शन है जो मेरे साथ प्लीज बहुत ध्यान देना, बिकॉज फ्रैंकली मैं इस सेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। नॉट दैट माय व्यू मैटर्स, आई एम नॉट द लेजिस्लेचर, नॉर एम आई द चीफ जस्टिस, बट फिर भी मेरे 9-10 हजार स्टूडेंट्स हैं, उनके काम आएगा, दे विल डेफिनेटली ब्रिंग इट अप। चलिए इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसेक्शन 2, देखो वर्ड क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1। 1 क्या था, आधा पीरियड खत्म होते ही छोड़ दोगे, या फिर 1/3 पे छोड़ दो। सो नॉट विथ स्टैंडिंग दैट एंड सब्जेक्ट टू थर्ड प्रोवाइजो, सब्जेक्ट टू थर्ड प्रोवाइजो, मैक्सिमम टाइम हो गया तो फिर तो नहीं रख सकते, चलो। सो दैट मीन्स अभी तक जो हमने आधा और 1/3 का पढ़ा है वो लागू नहीं होगा। हाँ, ये चीज लागू होगी कि पूरा टाइम वो अंडर ट्रायल काट चुका है तो नहीं, फिर तब ये लागू नहीं होगा। क्या? अब ध्यान देना, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल इन मोर देन वन ऑफेंस or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court. क्या? नो बेल? ये क्या लॉ है? Isn't it against Article 21? Let me voice my grievance. लिखा है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। Where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, no bail. चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक चोर है, मेरे पास एक चोर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक और केस था जिसमें इंक्वायरी केस में कॉजिंग वो है। ऑलरेडी मेरा एक जो पहला केस था चोर का, वो टेकिंग कॉग्निजेंस में पड़ा हुआ है मैजिस्ट्रेट के सामने। इसका वकील बेल लगाता है यहां पे कि सर पुलिस ने गलत पकड़ा है, मुझे सर बेल पे छोड़ दो। पुलिस देखती है, अच्छा यहां बेल लगाई, फट से यहां एफआईआर दर्ज कर देती है, ठीक है, इसके खिलाफ कि इसने एक और चोरी की है। कल को जब वो आता है बेल के लिए, पुलिस आ जाती है कि सर ये देखो हमारे पास एक एफआईआर और है इसकी, नो बेल। इतना आसान हो गया। आज अगर किसी के खिलाफ 4 झूठे मुकदमे चल रहे हैं, उसको बेल मिलेगी नहीं। व्हाट इज दिस लॉ? I know I have very limited legal acumen and knowledge. I admit, I concede.
But even to a legal nincompoop like me, this makes no sense. How can you stop bail under any circumstance? No bail will be given. That means, are you taking away the judicial discretion? The word is shall. और एक चीज और याद रखना, कोर्ट लिखा है, मैजिस्ट्रेट नहीं लिखा है. यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट की भी पावर नहीं है, यानी कि सेशन जज की पावर नहीं है. Has everybody understood my grouse? मैं क्यों इस सेक्शन के लिए दुखी हूं? और नॉर्मली आपको, अच्छा एक चीज और, अभी रुको. Where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases, more than one offense, क्या मतलब है इसका? एक ट्रांजैक्शन में 4 ऑफेंसेस हुए, रेप, मर्डर, हाउस ब्रेकिंग, ग्रीवियस हर्ट टू द अदर पर्सन. ये 4 ऑफेंसेस हैं. अगर एक में भी इसकी चल रही है अभी इन्वेस्टिगेशन, तो क्या आप बेल डिनाई करोगे? क्या मतलब है इसका? इन मोर देन वन ऑफेंस, एक ट्रांजैक्शन में तो मोर देन वन ऑफेंस होता ही होता है. कहना क्या चाह रहे हैं? इफ आई वॉज द पीपी, मैं तो बेल होने ही नहीं दूंगा किसी केस में. मैं कहूंगा जी 4 ऑफेंसेस लिखा है, अभी जी हमने रेप का इन्वेस्टिगेशन कर लिया, मर्डर का चल रहा है, या चलो छोटे केस ले लो, ही थेफ्ट है, हाउस ब्रेकिंग है और हर्ट है. सर हर्ट का हो गया, हाउस ब्रेकिंग का हो गया, अभी थेफ्ट का चल रहा है. क्या मतलब क्या है इसका? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड मेरा प्रॉब्लम कि इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ राइटिंग 4 ऑफेंसेस? एंड देन ये हम समझ सकते थे कि चलो गलती कर दी, 4 ऑफेंस मतलब 4 अलग केस. आगे ही लिखते हैं और इन मल्टीपल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट अ पर्सन. इसका मतलब क्या हो गया? आज के बाद अगर आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसके खिलाफ कोई भी और ऑफेंस है जो पेंडिंग है, कोई भी और प्री ट्रायल है, कोई भी और इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी और ट्रायल है, उसकी बेल तो जाना ही मत, क्योंकि मिलेगी. समझे मैं क्यों इस सेक्शन के बारे में बहुत चिंतित हूं? बिकॉज यू हैव with one stroke taken away my fundamental right of liberty on a preposterous ground that it is pending. खुद लिख रहे हो पेंडिंग. अभी प्रूफ तो नहीं, कहां गया आपका वो इनोसेंस वाला प्रिजम्पशन? कहां गया? आई मीन व्हाट इज इट? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड that how dangerous this subsection is? All I have to do, अगर मैं चाहता हूं आपकी बेल ना हो, आपके खिलाफ मैंने एक एफआईआर दर्ज की, आपके मैंने चार्जशीट डाल दी, अभी मैजिस्ट्रेट के पास पेंडिंग है, आपने बेल डाल दी. जैसे ही आपने बेल डाली, मैंने एफआईआर दर्ज कर दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, और अब मैं पहुंच गया कि सर इसकी बेल नहीं लेनी, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं. खत्म. That's it. I hope everybody has understood my critical analysis of this section. अभी तक पता है क्या है? अभी तक लोगों को आता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को आता है ये लॉ. मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत आगे हैं सबसे. हम तो इतनी बारीकियों में चले गए, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास आने वाली हैं. आप देखना मेरी बात, ये जरूर आएंगी. ये मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रही है. कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और कोई पेंडिंग है तो जी बेल मिलेगी ही नहीं. या आप ये लिख देते कि बेल आधी वाली नहीं मिलेगी, 1/3 वाली नहीं मिलेगी, तो सेंस होती है. इसीलिए when they have written he shall not be released on bail, अंडर दिस सेक्शन लिख देते तो क्या मुसीबत थी इनको. लिख देते, टेंशन खत्म कर देते हमारी.
हम वकीलों को टेंशन डाल दिए। अब कोर्ट माने या ना माने। अब मैं तो अगर डिफेंस का वकील हूं, मैं तो कहूंगा सर ये 479 में क्यों दिया हुआ। मैं तो यही कहूंगा कि आधे और 1/3 के ऊपर अप्लाई कर रहा है, सारे लॉ पे अप्लाई नहीं कर रहा। पर सुनेगा नहीं ना कोई मेरी। इसका मतलब है कोर्ट की मर्जी होगी। वो कहेगा नहीं 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 मिस्टर खन्ना, आपका बिल्कुल सोचने का नजरिया गलत है। दैट्स इट, राइट। चलिए, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड मैं क्यों इसके बारे में आई एम क्वाइट वरीड अबाउट दिस। इट्स नॉट अ वेरी गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन। रिधिमा, आई होप मेरे स्टूडेंट्स को ही कहते लिख दो, वही बेटर लिख देते। चलिए, can I proceed? Has everybody understood my concern about subsection 2? Why I'm not happy and why I feel this is against the constitution? चलिए, इसको खास बनाना। अच्छा, एक बात और, कल को आप क्योंकि अभी वकालत में जा रहे हो 3 साल, तो कई लोग जा रहे हैं, इसको अगर आपको कल डिफेंड करना है ना, क्योंकि ये बहुत बोलेंगे, सारे जज बोलेंगे ना 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 मैं नहीं दे सकता, ये देखो लिखा हुआ है। तो एक डिफेंस भी मैं दे रहा हूँ। उनको बोलना है सर ये 479 में लिखा है, और कहीं कोई स्पेशल सेक्शन तो नहीं दिया हुआ। अगर लेजिस्लेचर चाहता तो 480 बना देता इसको। तो इसका एप्लीकेशन तो सर आधे में है, आधे में नहीं छोड़ेंगे या 1/3 में नहीं छोड़ेंगे, आप तो पूरे भी ले गए। ऐसे घुमा देना, ये तरीका है घुमाने का। चलिए आगे चलते हैं, सबसेक्शन 3। कैन आई प्रोसीड? एवरीबॉडीज गॉट माय पॉइंट, एवरीबॉडीज अंडरस्टूड माय पॉइंट। कोई बेटा ये किताबों में नहीं लिखी है चीजें, और ना ही आएंगी, पता नहीं कब आएंगी। ये तो जब ये तो जब चोट लगती है ना तब आदमी चिल्लाता है। अभी चोट नहीं लग रही, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मेरे इतने जज हैं अपने, और कई और भी हैं, सब मुझे रोते हैं यार बीएनएसएस जब जैसे जैसे वकील लोग ला रहे हैं तब होता है। हाँ, करेक्ट। शरण्या, मैंने डिफेंस का बोला कि आप ये कहना कि अगर बाई चांस आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो मना कर रहा है बेल यही वाला सबसेक्शन, तो कह देना कि सर ये सबसेक्शन है, ये सेक्शन नहीं है। और क्योंकि ये सेक्शन किस चीज को डील करता है, आधा या 1/3 को, तो उसको मना कर रहा है सर आधे पे नहीं छोड़ोगे या 1/3 पे नहीं छोड़ोगे, ये नहीं कि सारी बेल ही नहीं करोगे। इस तरह घुमा देना। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। चलिए, सबसेक्शन 3, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल and where the accused person is detained on completion of half or 1/3 mentioned in subsection 1 as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court for the release of such person. अब यहाँ पे यस यस रिया, यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, कौन बताएगा कि आधी सजा हो गई है, 1/3 हो गई है। ये ड्यूटी दी गई है सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल को, ये इन्फॉर्म करेगा। अब इसमें एक चीज याद रखना, बहुत बड़ी पॉइंट है ये, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के पास जेल की कस्टडी का रिकॉर्ड होता है, पुलिस कस्टडी का रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो सपोज पुलिस कस्टडी में मैं 15 दिन रहा हूं, तो 15 दिन पहले छूटना चाहिए मुझे, अगर 1/3 हो गया तो ये हमेशा याद रखना, इन जेल रिकॉर्ड देयर इज नो मेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी। तो कभी भी अपने आप को क्लाइंट को छुड़वाना है तो पुलिस रिकॉर्ड उससे पूछ लेना, तेरा पुलिस कस्टडी का रिकॉर्ड दे, तो फाइल अपना अरेस्ट मेमो दे, उसको फिर खुद आप ऐड करके जल्दी, जैसे 5 दिन वो पुलिस में रहा है तो 5 दिन पहले अप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। बिकॉज जेल का रिकॉर्ड तो शुरू होता है जब वो जेल में गया। होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड। चलिए, नाउ वी गो ऑन टू सेक्शन 480, नॉन बेलेबल ऑफेंस। BNSS corresponds to section 437 CRPC.
नाउ वी आर डीलिंग विद नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. अब क्या होगा? 480. When any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, or appears by himself, or is brought before a court by the police, other than the High Court or Court of Session. ये सेक्शन सिर्फ मैजिस्ट्रेट से डील करता है. ये ना सेशन कोर्ट से डील करता है, ना ही ये हाई कोर्ट से डील करता है. अब इस पे याद रखना, एक चीज आपने नोट की. अब अगला वर्ड क्या है? He may be released on bail. हमारे 478 में क्या वर्ड यूज था? 478 में बेलेबल में था shall be released on bail. यहां पे क्या वर्ड है? may be released on bail. अब इसमें अब आप एक चीज नोट करो, रीड बिटवीन द लाइंस. क्या पुलिस को पावर है छोड़ने की? लेट्स सी अगेन. When any person accused or suspected of commission of a non-bailable offense is arrested or detained by an officer in charge of a police station or appears before a court, he may be released on bail by any of them. So एक चीज याद रखना, बहुत बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, क्या पुलिस नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ले सकती है? प्रोवाइडेड वो सेशन कोर्ट का ना हो और हाई कोर्ट का ना मामला हो. ना वो सेशंस का होना चाहिए मामला, ना वो हाई कोर्ट का होना चाहिए. मैजिस्ट्रेट का अगर मामला हो और नॉन बेलेबल हो तो पुलिस भी बेल ले सकती है. क्लियर हो गया एवरीबॉडी? 90% लोगों को नहीं पता ये बात कि पुलिस भी बेल ले सकती है. पर कौन से मामलों में? जहां पे सेशन ट्राइबल केसेस ना हो. गॉट इट एवरीबॉडी? एवरीबॉडी क्लियर? चलिए, बट अब बट आ गया प्रोवाइसो. Such person shall not be so released if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense punishable with death or life imprisonment. हमने देखा है कि कमिटल में मैजिस्ट्रेट चाहे तो बेल ले सकता है कमिट करने से पहले, बट वो कहां बेल नहीं लेगा? जहां डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है. सेकेंड पॉइंट, such person shall not be released on so released if such offense is a cognizable offense and plus he has been previously convicted of an offense punishable with death, life or imprisonment of 7 years or more, and there is previous conviction of death, life or 7 years and above. यानी अभी उसने ऑफेंस जो किया है उसका ट्रायल भी होना है, पर पहले उसका कन्विक्शन है और अभी उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो नो बेल. सो दो मामलों में बेल नहीं है, जहां डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, दूसरे में जहां कॉग्निजेबल ऑफेंस है और प्रीवियस उसका कन्विक्शन है, जहां डेथ या लाइफ से था या 7 साल से ऊपर ऑफेंस था, तो प्रीवियस कन्विक्शन जहां है. और he has been previously convicted of 2 or more occasions. ये 1 conviction और 2 convictions किस चीज के? of a cognizable offense punishable with 3 years or more but not less than 7 years. यानी 3 to 7 years में 2 पुराने कन्विक्शन हो. जल्दी से रिवाइज करें, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है.
नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट को बेल लेने की पावर है। हाउएवर ये पावर कब नहीं है? जब उसने डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट से ऑफेंस किया है, या फिर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसका प्रीवियस कन्विक्शन एक बार का है, जो 7 साल से ऊपर के ऑफेंसेस हैं उनका है, चाहे लाइफ है चाहे डेथ है, और यहां बी उसके प्रीवियस कन्विक्शन 2 हैं जो 3 से 7 साल से पनिशेबल ऑफेंसेस थे। इन दीज केसेस नो बेल शैल बी ग्रांटेड। क्लियर हो गया एवरीबडी? सबको क्लियर हो गई ये बात? सबको बहुत टेक्निकल लगता है, बट आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब आते हैं हमारे 4 प्रोवाइसो, 4 प्रोवाइसोस। चलिए अब बहुत ध्यान से रखना, बहुत इस सेक्शन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बी वेरी केयरफुल। पहला प्रोवाइसो, provided that the court may direct that a person referred to in clause 1 or clause 2 be released on bail if such person is under the age of 16 years। पहले 16 years था, अब आ गया है child। The word child has not been defined, so child word हम we'll have to go to the JJ Act to understand who is a child, so we will have to go according to that। so पहला पॉइंट हो गया, अगर वो चाइल्ड है, उसने मर्डर किया है या उसने ये है, तो उसको बेल मिल जाएगी। और इज अ वुमन, अब याद रखना वुमन को बेल मिल जाती है, बट अगर वुमन, आगे देखेंगे हम, वुमन ने अगर मर्डर किया है तब नहीं। अभी आते हैं इस बात पे। यस एग्जैक्टली। सो आज के दिन में विदिशा, द वर्ड चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय द जेजे एक्ट। सो वुमन ऑफ एनी एज will get bail, or is sick of any age or infirm, 3 कैटेगरीज को नॉट विथ स्टैंडिंग ऊपर के 2 क्लॉजेस बेल दी जा सकती है। क्लियर हो गया? ओके। प्रोवाइडेड फर्दर that the court may also direct that a person referred to in clause 2 be released on bail if it is satisfied it is just and proper or for any other special reason। प्रोवाइजो 2 क्या कहता है कि जहां पे हम कहते हैं कि प्रीवियस कन्विक्शंस हैं उसके, 1 कन्विक्शन या 2 कन्विक्शन, वहां पे कोर्ट को अगर जस्टिस लगे तो वो बेल ले सकता है। यानी कि जो 1 था, उसने डेथ एंड लाइफ की से पनिशमेंट ही इज कमिटेड, उसमें बेल नहीं मिलेगा, वो है। और जहां पे कोई प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से बेल डिनाई हो रही है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल डिस्क्रिशन एज पर प्रोवाइजो 2। थर्ड प्रोवाइजो, provided also that the mere fact that an accused person may be required for identified by witness during investigation shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail, and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court। अब सिर्फ इतना कहना कि ये आइडेंटिफिकेशन करानी है, इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करानी है, या हमने विटनेसेस से भी आइडेंटिफाई करना है इसलिए बेल ना दी जाए, दिस इज नो ग्राउंड। सो प्लीज रिमेंबर, नो ग्राउंड के अंदर अगर प्रीवियस जो उसका सिर्फ ये ग्राउंड हम ले रहे हैं कि जिसको हमने आइडेंटिफाई कराना है विटनेस से, इसलिए बेल डिनाई की जाए, दिस कैन नॉट बी टेकन एज अ ग्राउंड फॉर डिनायल ऑफ बेल। फोर्थ प्रोवाइजो,
Provided also that no person shall, if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, life, or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the PP. अगर किसी को भी अगर बेल देनी है जिसने 7 साल से ऊपर ऑफेंस किया है, तो बेल एक तरफा नहीं होगी, पीपी की सुनवाई के बिना बेल कोर्ट अकेला नहीं देगा. सो जहां भी सीरियस ऑफेंसेस हैं, बेल देने से पहले मैजिस्ट्रेट मैंडेटरी है कि पीपी को सुने. हाउएवर ये एक कागजी बात है, हर मामले में ही पीपी को सुनता ही है कोर्ट, तो हम मान सकते हैं कि चलो ये लिख दिया जस्ट इन केस कोई गलत ना चला जाए मैजिस्ट्रेट, इसके लिए ये चीज लिखी हुई है. इज एवरीबडी नाउ क्लियर? हाँ, जो प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो थर्ड, mere fact that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation or for police custody beyond first 15 days shall not be sufficient ground for refusing. यानी कि अभी जो चेंज हो गया है बीएनएसएस में कि अगर उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए, बेल डिनाई नहीं होगी, या पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 15 दिन के बाद फिर चाहिए, तो उसके लिए भी सिर्फ इस ग्राउंड के लिए कि जब मैं 15 दिन के बाद फिर जरूरत पड़ सकती है, ये रीजन, दिस इज नो लॉन्गर अ रीजन फॉर डिनायल ऑफ बेल. आई होप शरण्या यू आर क्लियर. अभी तक सबको क्लियर है? एवरीबडी क्लियर ऑन ऑल दिस? चलिए अब आते हैं हम सबसेक्शन 2. If it appears to such court or officer at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense, but there are sufficient grounds for further inquiry, then into his guilt, the accused shall, subject to the provisions of 494 and pending such inquiry, be released on bail at the discretion. By chance मैंने आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ्तार किया और मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि आपने बेलेबल ऑफेंस किया, तो मैं आपको नॉट विथस्टैंडिंग द फैक्ट कि मैंने आपको नॉन बेलेबल के लिए गिरफ्तार किया था, मैं आपको छोड़ सकता हूं बेल लेके ऑन एज अ बेलेबल ऑफेंस. सो दैट मीन्स इफ ड्यूरिंग माय इन्वेस्टिगेशन or during my even my pre-trial process, if I come to understand that you have not committed a non-bailable offense for which you were arrested, I can take bail for that offense जो probably मुझे लगता है आपने किया है और जो bailable है, और आपको छोड़ सकते हैं. Subsection 3. When a person accused or suspected of the commission of an offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more, or an offense under Chapter 6, which is state offenses against state, 17 of BNS, these deal with offenses against state, against body and against property. यानी कि आपने कोई ऑफेंस किया है जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है, बॉडी ऑफेंस है या स्टेट के खिलाफ ऑफेंस है, ऐसे मामलों में or abetment, conspiracy or attempt to commit any such offense is released on bail, the court shall impose the following conditions. तो जहां भी किसी ने ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 साल से ऊपर है, 7 साल तक या उससे ऊपर, एक्सटेंड टू 7 years और अबव, और वो स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस हैं, ह्यूमन बॉडी के खिलाफ ऑफेंसेस हैं या प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंसेस हैं, तो कोर्ट फॉलोइंग कंडीशंस लगाएगी ही लगाएगी. कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वो ये कंडीशंस लगाए. कौन सी कंडीशंस हैं, चलिए देखते हैं. पहला, that such person shall attend in accordance with the conditions of the bond executed under this chapter. जो आपसे बॉन्ड भरवा रहे हैं, which means normally जो होता है ना, जहां पे ऑफेंसेस में लिखा होता है पनिशेबल अप टू 7 years, उसको कह रहे हैं, उनको कहते हैं हम मे एक्सटेंड टू.
punishable up to 7 years. सो जो अब उसमें हम ये लिखेंगे कि जो कंडीशंस हैं बॉन्ड की जिसमें हम आपको छोड़ने वाले हैं वो आप अकॉर्डिंगली पूर्ण फुलफिल करोगे. दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एनी ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस फॉर विच इज एक्यूज्ड. वो ऑफेंस नहीं करेगा जिस वैसा ही ऑफेंस जिसके लिए हम तुझे छोड़ रहे हैं. नॉर्मली हम ये नहीं लिखते कि जैसा ऑफेंस है वैसा नहीं करेगा, हम लिखते हैं यू विल कमिट नो अदर ऑफेंस. नॉर्मली ये लिखते हैं, पर यहाँ चलो ये लॉ है, बट जो एक्चुअल बेल बॉन्ड होता है उसमें लिखा होता है यू विल कमिट नो अदर ऑफेंस. That such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or any police officer or to tamper with evidence, and may also impose in the interest of justice such other conditions as it considers necessary. तो ये तीन चीजें तो होंगी. बॉन्ड की कंडीशंस फुलफिल करते रहोगे, कोई भी ऑफेंस नहीं करोगे, विटनेसेस को आप तंग नहीं करोगे, इंड्यूस नहीं करोगे कि तुम झूठ बोलो, और कोई भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करो. सी अगर ना भी लिखा होता, इसीलिए जब भी हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो हम यही का बात तो लिखते हैं अपने आंसर में. सी सपोज आई वांट टू अप्लाई फॉर बेल फॉर यू, तो मैं यही चीजें लिखूंगा. ही शैल कंप्लाई विद द बॉन्ड ऑफ द बेल, द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड. He will not tamper with witnesses. He will not flee. He will not commit any offense. He will not cause any inducement, threat or promise to any witness. यही तो हमारा डिफेंस होता है. बट चलो ये और आदेश अब कोर्ट आपको देगी, जो वैसे भी ना भी लिखते तो अंडरस्टूड था, पर चलो कोई बात नहीं. An officer of a court releasing any person on bail under subsection 1 or 2 shall record his writing for reasons for doing so. Now please remember, कभी भी आप बेल पे छोड़ते हो, reasons must be recorded. But having said this, as I told you in our first lecture, reasons to be recorded does not mean that you have to write the merits of the case. आपको डिटेल नहीं देना है. You don't have to write a complete in ट्रायल नहीं करना. So one thing we must remember, only the reasons why you are granting bail. बस ये नहीं कि मेरिट्स हैं, ये बच जाएगा, ये कॉन्विक्ट लगता ही नहीं है मुझे, ये तो एक्विट हो जाएगा, ये नहीं लिखना. इसका मतलब आप जजमेंट पास कर रहे हो. सो ये चीज बड़ा ध्यान से रखना. बहुत सारे मैंने देखे हैं मेरे स्टूडेंट्स जो अभी जज बने. इनफैक्ट एक दो स्टूडेंट्स मेरे जो एडीजे बने, उन्होंने भी मेरे को शुरू में भेजते हैं कि सर हमने ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है. तो मैंने वापस बोला उनको, बेटा फाड़ो. व्हाट सर, हमने इतनी मेहनत की, सारा रात. मैं कहा यू हैव रिटन अ जजमेंट. ये जजमेंट नहीं है. आपने बेल क्यों दी या क्यों डिनाई की, बस मोटा मोटा कि ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा. बस बस बस. ये नहीं कि इस जजमेंट में ये लिखा है, इसमें ये वहां था, विटनेसेस ने नहीं देखा, ये पक्का बच जाएगा. ये तो यू आर राइटिंग अ जजमेंट. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर कि चाहे लिखा है इसमें रीजंस देने हैं, बट रीजंस फॉर ग्रांटिंग अ बेल और रीजंस नॉट ग्रांटिंग अ बेल. फॉर एग्जांपल, ही इज ऑलरेडी अ सजा याफ्ता, ही इज अ बैड कैरेक्टर. इसके खिलाफ पीपी ने बताया 110 की कार्रवाई हुई है. he is a gunda element as per the evidences, so he is going to terrorize the witnesses. तो इस तरह की चीज, या इसका पासपोर्ट तैयार है, अभी बनवाया है इसने, भागने वाला है, जो भी है, ये चीजें लिखनी है. हाँ, यस यस आशना, करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है. गुड गुड. सो माय स्टूडेंट्स आर वेरी शार्प. या एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग, करेक्ट. चलिए, अब आप समझ गए कितनी बारीकियां होती हैं लॉ में. आप लोगों को मैं एक ही चीज सिखाता हूँ, बारीकियां पकड़ना सीखो. एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट में और ऑर्डिनरी एडवोकेट में फर्क क्या होता है, यही होता है बस. चलिए आगे चलते हैं. सबसेक्शन 5. Any court which has released a person on bail under subsection 1 or 2 may, if it considers it necessary so to do, direct that such person be arrested. ये
बहुत इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 5, कैंसिलेशन ऑफ बेल। इसी सेक्शन में कैंसिलेशन भी है। सबसेक्शन 5 डील्स विद कैंसिलेशन ऑफ बेल। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या कैंसिलेशन ऑफ बेल ओनली इन विच इज गिवन इन सेक्शन 480? व्हाट अबाउट दैट बेल जो हमने 187 में ली थी? यानी कि डिफॉल्ट बेल को भी हम क्या, याद आ गया डिफॉल्ट बेल का 187 में हमने किया था, क्या उसको भी इस सेक्शन में कैंसिल कर सकते हैं? इस पॉइंट के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1978 सुप्रीम कोर्ट, बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। A bail granted under section 167 is irrespective of the merits of the case and is given on ground as a default. Even if a bail was granted under section 167, it is open for the magistrate acting under 437 to cancel the bail granted under 167 on the basis of material submitted before him if he thinks it is in the interest of justice. क्लियर हो गया? सो 187 बीएनएसएस की या 167 सीआरपीसी की बेल कैंसिल कहां होगी? 480 बीएनएसएस या 437 सीआरपीसी। इज एवरीबॉडी नोटेड? चलिए, सबसेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसेक्शन 6 बहुत ध्यान देना। इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय अ मैजिस्ट्रेट, the trial of a person accused of any non-bailable offence is not concluded within a period of 60 days from the date first taking evidence, such person, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reasons to be recorded the magistrate otherwise directs. बहुत कम लोगों को आता है ये। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस का ट्रायल शुरू हो गया और 60 दिन हो गए और 60 के 60 दिन एक्यूज जो है वो जेल में है, आपको बेल देनी पड़ेगी, आपको बेल देनी पड़ेगी। रेयर केसेस हैं जहां आपको लिखना पड़ेगा कि मैं क्यों बेल नहीं दे रहा, क्योंकि वो फिर चैलेंजेबल है हर जगह। क्लियर हो गया? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हम पढ़ चुके हैं डिफॉल्ट बेल, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रायल में डिले। 60 दिन से ज्यादा डिले है और वो जेल में है लगातार, बेल इज अ राइट। कैसे मना कर सकते हैं शरण्या? शोइंग दिस रीजन, और उसको बोलो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रिवीजन में जाओ उस ऑर्डर के खिलाफ, रिवीजन में जाओ ना। व्हाई डोंट यू गो इन रिवीजन? ओके, I hope everybody has noted this very very important point. Subsection 7, सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर सपोज ट्रायल कंप्लीट हो गया और अभी जजमेंट देनी है मैंने, और ट्रायल में मुझे पता चल गया ये इनोसेंट है, तो अब जजमेंट आने में 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, क्यों इसको रखो? जब आपका ट्रायल खत्म होती है आपको पता चल गया ये इनोसेंट है, तो क्यों 3 महीने 4 महीने 5 महीने रख रहे हो? इमीडिएट उसको छोड़ दो। If at any time after the conclusion of the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of any such offence, it may नहीं लिखा है, shall लिखा है, shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond to hear the judgment delivered. Is everybody now clear? This was a rather long section. Now quickly let's have some important judgments on these. अभी तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस पूरे सेक्शन में?
सबको क्लियर है? इट वॉज अ वेरी टेक्निकल सेक्शन, बट आई होप सबने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिया। चलिए, इसमें बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, अलग अलग सब सेक्शंस, प्रोवाइजोज। ओके, चलिए अब जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं इस बारे में। जो प्रिंसिपल ऑफ बेल है, आई वुड लाइक टू कोट मनसब अली वर्सेस इरशान, मनसब अली वर्सेस इरशान 2003 सुप्रीम कोर्ट। द पावर ऑफ कोर्ट इज नाउ, जो बेल की बात करें, it has to be exercised with great care and caution. The power of the court is discretionary. It has to be exercised with great care and caution by balancing the individual right of liberty with the interest of the society in general. So बेल का प्रिंसिपल क्या है? ये डिस्क्रिशनरी पावर तो है, बट ग्रेट केयर एंड कॉशन चाहिए, बैलेंसिंग द इंडिविजुअल राइट ऑफ लिबर्टी विद द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। नेक्स्ट पॉइंट, what can be the considerations for bail? तो consideration, these are not exhaustive, but of course illustrative है। क्या क्या है, मैं वेरियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में से निकाल के बता रहा हूं आपको। पहला तो होता है हमेशा द नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये बेसिक कंसिडरेशन होता है बट बेल का। मोर हीनियस द क्राइम, द ग्रेटर द चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ बेल। उसके बाद not only the accusation but the severity of punishment, also reasonable apprehension of tampering with evidence, या विटनेसेस को धमकाएगा। उसके बाद prima facie evidence, prima facie satisfaction of the court कि ऑफेंस किया है इसने। एंड लास्टली प्रोसिक्यूशन फ्रिवलस है कि जेन्युइन है। सिर्फ अगर प्रोसिक्यूशन जेन्युइन लगे तब जाके बेल नहीं मिलेगी, अदरवाइज यू मस्ट गिव बेल। एक चीज और याद रखना, कोई ऐसा एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि क्योंकि मैं इतने सालों से जेल में हूं तो जी मुझे बेल मिलनी चाहिए। सो लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इज नो ग्राउंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल। However, as far as bail is concerned, each case stands on its own merits and we cannot generalize कि ये मामला उसमें भी लागू होगा। Each case is a question of fact. Each case stands on its own merits. The conditions when they are for bond should never be too onerous, should never be such which the accused is unable to meet. Otherwise, it amounts to denial of bail. However, if the trial continues for a very long time, this can be taken as a consideration for bail. ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रनीफ, RANEEF, 2011 सुप्रीम कोर्ट। जब भी आप रिफ्यूज करते हो बेल, यू मस्ट गिव रीजंस कि क्यों मैं रिफ्यूज कर रहा हूं। सिमिलरली, इफ यू गिव बेल, you must also give reasons for giving bail. और ये चीज सिर्फ लोअर कोर्ट्स पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज हाई कोर्ट पे भी अप्लाई करती है।
ये मामला आया था अफजल खान वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2007 सुप्रीम कोर्ट। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठा। सपोज मुझे एक ऑफेंस के लिए एंटीसिपेटरी बेल मिल गई फॉर अ लेसर ऑफेंस, से अबेटमेंट टू सुसाइड की, और बाद में वो निकल आता है मर्डर, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल आड़े आएगी मुझे बेल लेने में इस केस में? द आंसर इज नो। एंटीसिपेटरी बेल जिस सेक्शन के लिए ली गई है उसी पे अप्लाई होती है। अगर बाई चांस ये सेक्शन ज्यादा डेंजरस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला 306, 200, 302 में बन गया, एंटीसिपेटरी बेल कोई मायने नहीं रखती। आई कैन कैंसल द बेल, आई मे और मे नॉट गिव बेल इन द न्यू मैन। Bail can be denied, notwithstanding the fact that anticipatory bail was given for a lower offense. Okay. Now, और कंडीशंस में उसमें लिखा था, रख सकते हैं, सरेंडरिंग योर पासपोर्ट, ये एक बड़ा कॉमन होता है, सरेंडरिंग योर पासपोर्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, हमने कैंसिलेशन ऑफ बेल का लॉ पढ़ा, कौन से केसेस में कैंसिलेशन होता है? आई वुड लाइक टू क्विकली go through Supreme Court judgment on this. Ram Govind Upadhyay versus Sudarshan Singh 2002 Supreme Court. ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है, कौन से ग्राउंड्स में कैंसिलेशन की जा सकती है? पहला, वेयर ही कमिट्स, पहली बात, सेम ऑफेंस और अनदर ग्रीवियस ऑफेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बेल। दूसरा, if he hampers investigation, forcibly prevents the IO, या किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर करता है। थर्ड, if he tampers with the evidence, for example intimidating the prosecution witnesses या कोई और तरीके से। नेक्स्ट, if he runs away to नेपाल भाग गया या कहीं और भाग गया या अंडरग्राउंड हो जाता है। एंड लास्टली, अगर कोई भी वो वायलेंस का एक्ट करता है रिवेंज में, चाहे पुलिस के खिलाफ, चाहे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के खिलाफ, या जिसने उनको बुक किया है उनके खिलाफ, ये 5 कारण होते हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल के। ओके, अब अगर मेरी रिजेक्ट हो जाती है बेल, सो कैन अ फ्रेश बेल पिटिशन बी पुट अप? द आंसर इज यस, बट ओनली अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस, ओनली अंडर चेंज सर्कमस्टांसेस। सो चेंज सर्कमस्टांसेस जब तक नहीं है तब तक मैं दोबारा नहीं डाल सकता। ओके, also one thing we must remember, once a bail is granted, it cannot be cancelled suo motu. It has to be, without hearing the parties, आप सुओ मोटो बेल कैंसिल नहीं कर सकते। ये मामला पंजाब हरियाणा के सामने आया था, चुन्नीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। You cannot suo moto cancel unless both the parties have applied and there is a hearing of both the parties. हाँ भरत, बस 1 मिनट है अभी। Now, one thing we must remember, I would like to quote here a very important Supreme Court judgment. Afzal Khan versus State of Gujarat 2007 Supreme Court. Though the order disposing of a bail application has to be a reasoned order, लिखा हुआ है, detailed reasons touching the merits of the case have not to be given, जो मैंने पहले भी बताया आपको, चाहे reasoned order होगा पर merits of the case उसमें बिल्कुल नहीं आने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, इस ग्रांट और नॉन ग्रांट ऑफ अ बेल के खिलाफ कोई अपील नहीं है, कोई रिवीजन नहीं है। दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2008 सुप्रीम कोर्ट, 2008 सुप्रीम कोर्ट, it's an interlocutory order, there is no appeal against a bail order, nor is there any revision. चलिए, वी विल नाउ स्टॉप, अभी बस 15 मिनट का ब्रेक है। at 3:45 we will have our Hindu law. I will continue with our divorce.
divorce proceedings. Thank you, everybody. See you in 20 minutes.